السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اللہ رب العالمین اس سے پہلے کی آیت کے اندر زانی مرد اور زانی عورت اگر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا کیا ہے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ان کی سزا کیا ہے، جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر آیت نمبر 2 کے اندر گزرا کہ اگر مرد اور عورت شادی شدہ نہیں ہے، وہ زنا کرتے ہیں تو ان کو کیا کرنے ہیں؟ 100 کوڑے لگانے ہیں۔ ان کو کیا کرنے ہیں؟ 100 کوڑے لگانے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث کے اندر تغریب عام کا بھی ذکر ہے کہ ان کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی مرد وہ شادی نہیں کرتا ہے مگر کس سے؟ زانیہ سے یا مشرکہ سے، زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ اور اسی طریقے سے والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور اسی طریقے سے زانیہ عورت وہ نکاح نہیں کرتی ہے، شادی نہیں کرتی ہے مگر کس سے؟ ایک زناکار مرد سے یا مشرک سے۔ تو مفسرین کرام نے اس آیت کی 2 تفسیریں کی ہیں۔ اس آیت کا 2 معنی بتلایا ہے کہ جو زانی مرد ہوتے ہیں وہ جب شادی کے لیے اپنے عورتوں کو تلاش کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اپنی طرح زانیہ ہی کو پسند کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ زانی مرد اگر ہے تو جب اس کو شادی کرنے کا ارادہ ہے تو اسی طریقے سے اپنے ہی طرح ایک طائفہ عورت کو، ایک زانیہ بدکار بدچلن عورت ہی کو پریفر کرتا ہے، اسی کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک زانیہ عورت جب وہ شادی کرنے کے لیے مرد کو ڈھونڈتی ہے تو وہ زانی مرد کو، بدکار مرد کو اور بدچلن مرد ہی کو وہ ترجیح دیتی ہے اور اسی سے شادی کرتی ہے۔ اور دوسرا معنی جو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں نکاح سے مراد نکاح نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جماع ہے۔ یہاں نکاح سے مراد نکاح نہیں ہے بلکہ نکاح سے مراد کیا ہے؟ جماع ہے، کہ زانی آدمی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور غلط کام کرنے کے لیے کیا ہے؟ زانیہ کو ہی ڈھونڈتا ہے اور زانیہ سے وہ غلط کام کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، کہ جو زانی مرد ہیں وہ نکاح نہیں کرتے ہیں، اپنے نکاح میں نہیں لیتے ہیں یا شادی نہیں کرتے ہیں مگر زانیہ عورت سے۔ اس کے بعد کہا او مشرکہ، یا مشرکہ عورت کو، اور اس کے بعد والی آیت میں او مشرکن، یا بدکار یا زانیہ عورت مشرک آدمی کو تلاش کرتی ہے۔ کیوں شرک کو زنا کے ساتھ لایا گیا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں پر شرک کو زنا کے ساتھ اس لیے لایا گیا ہے کہ جس طریقے سے زناکار مرد ہو یا عورت ہو، جو اس کا حلال جگہ ہے، جو یا اس کا حلال طریقہ ہے، اس کو چھوڑ کر کے دوسرے کے ساتھ اپنے اس حلال چیز میں دوسرے کو شریک کرتی ہے، دوسرے کے لیے جس کے لیے وہ حرام ہے اس کو کرتی ہے، اسی طریقے سے مشرک بھی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کہ جس اللہ رب العالمین کی اس کو عبادت کرنی ہے،
जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसको पुकारना है, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत को छोड़ करके गैरुल्लाह को पुकारता है। तो गोया कि जानी और मुशरिक में एक तरह की मुशाबहत पाई जाती है। कैसी मुशाबहत है कि दोनों जो चीज उनके लिए हलाल है, जो तरीका उनके लिए सही था, उस तरीका को छोड़ करके उस तरीके में वो दूसरे लोगों को शरीक करते हैं। जिस तरीके से जानी मर्द या औरत जो उसका हलाल तरीका उसको छोड़ करके दूसरे को शरीक करता है, दूसरे के साथ करता है, इसी तरीके से मुशरिक भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत में गैरुल्लाह को शरीक करता है। इसलिए यहाँ पर मुशरिका और मुशरिका जिक्र है। कहते अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका व हुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीजें मोमिनों पर हराम कर दी हैं। क्या कि मोमिन जो है, और दूसरी एक चीज और समझते चलिए, जो कहा गया अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका या वज़्ज़ानियतु ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, ये गालिब है। ये क्या है? अगलबियत यानी अक्सरियत को बतलाएगा। ऐसा नहीं है कि जानी को जानी ही मिलेंगे। यानी अगर किसी आदमी से ज़ना सादिर हो गया, किसी औरत से ज़ना कर लिया, बाद में वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ कर देता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसको ज़नाकार औरत ही मिलेगी, बल्कि ये क्या है? अगलबियत और अक्सरियत पर महमूल है कि अगलबियत और अक्सरियत यही है कि जो ज़नाकार होगा वो ज़नाकार ही को तरजीह देता है और ज़नाकार से ही शादी करता है, और इसी तरीके से जो ज़ानिया होगी वो ज़नाकार को ही तरजीह देगी। ये अगलबियत और अक्सरियत पर है। उसके बाद कहा हुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, और मोमिनों पर यह हराम है। यानी जो मोमिन होंगे, जो पक्के सच्चे मुसलमान होते हैं, वो अपनी निकाह में जानिया को पसंद नहीं करते हैं। और अगर किसी को मालूम है कि जानी है तो मोमिन जो होंगे वो किसी भी जानिया से शादी नहीं करेंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 4 के अंदर इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा। यानी अगर कोई किसी के ऊपर ज़ना की तोहमत, ज़ना का इल्जाम लगाता है तो उसके लिए क्या है? अगर कोई किसी को ज़ना से मुत्तसिफ करता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो 4 गवाहों को लेकर के आए। कितने गवाह को? 4 गवाह को लेकर के आए हो। चारों की दलील क्या हो? सेम हो, और चारों के दलील मतलब गवाही के अंदर यकसानियत पाई जाए, और कि जो हालत या जिस तरीके से पहला बयान कर रहा है वही हालत उसी तरीके से दूसरा। ये नहीं कि एक कुछ और कह रहा है कि मैंने मर्द को ऊपर देखा औरत को नीचे, दूसरा कह रहा नहीं मैं नीचे औरत को देखा ऊपर, तो इसको नहीं कबूल किया जाएगा, बल्कि चारों की गवाही सेम हो। का वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, मुहसनात के माने है अल अफीफात। मुहसनात के माने क्या है? अफीफात। और यरमून के माने क्या है? तोहमत लगाना, चार्जेस या लेज जो भी कह लें आप लोग। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, और वो लोग जो मुहसनात यानी अफीफात औरतों को, नेक पाक दामन औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं। किस चीज का? ज़िना का तोहमत लगाते हैं। सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा, उसके बाद वो लोग 4 दलीलों को नहीं ला पाते। यानी कि अगर कोई आदमी किसी औरत के ऊपर इल्जाम लगाता है, किसी मर्द के ऊपर इल्जाम लगाता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो 4 दलीलों, 4 लोगों को दलील बतौर गवाही आई विटनेस लेकर के आए। कहते सुम्मा लम यअतू, उसके बाद तोहमत लगाने के बाद वो लोग, एक ही आदमी था उसने कह दिया, अब उसके बाद दलील ही नहीं है, वो अकेला था। इसीलिए अगर कोई आदमी किसी को ज़िना करते हुए देखे, जब तक 4 आदमी ना हो किसी के ताल्लुक से गवाही मत दे, क्योंकि अगर ज़िना की गवाही देनी है तो कम से कम
4 आदमियों का होना जरूरी है। अगर 4 आदमी से कम 3 आदमी देखे हैं, 2 आदमी देखे या एक कोई अकेले देखा है तो वो खामोश रहे। हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके काम पे पर्दा डाल दे, क्योंकि अगर आप किसी को देखे हैं और आपने आके गवाही दे दी तो 3 लोग कहाँ है बकिया, और उन 3 लोगों को कहां से आप लेकर के आगे। गोया कि आप यहां गर्चा हक पर थे, लेकिन आप को कोड़े लगेंगे कि 4 गवाही जरूरी है। कहते सुम्मा लम यअतू बिअरबाअत शुहदा, अगर और इस तरीके से बाज लोग दुश्मनी में, किसी को दुश्मनी में ही गवाही दे, मतलब तो ज़िना का तोहमत लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से इस्लाम ने इसके लिए बहुत ही शदीद और टाइट रिस्ट्रिक्शन और ये तमाम चीजें लगाई हैं कि बगैर 4 गवाह के किसी के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना सही नहीं है। अगर कोई किसी के ऊपर ज़िना के तोहमत इल्जाम लगा दिया है और वो 4 गवाहों को नहीं ला सका है, 4 गवाह उसके पास मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, फजलिदूहुम समानीन जल्दा, तो उनके ऊपर कितने लगाने हैं, 80 कोड़े लगाने हैं। उनको क्या करने हैं, फजलिदूहुम समानीन जल्दा, उनको बतौर सजा की वो गवाही मुकम्मल नहीं कर सके, इस वजह से तोहमत लगाने की वजह से 80 कोड़े लगाए जाएंगे। वला तक़बलू लहुम शहादा, और उनकी गवाही कभी भी कबूल नहीं की जाएगी। व उलाइका हुमुल फासिकून, और वो लोग क्या होंगे, फासिक होंगे। गोया कि अगर कोई आदमी किसी औरत के ऊपर या किसी मर्द के ऊपर ज़िना का तोहमत या इल्जाम लगाता है तो उसके ऊपर 3 चीजें मुरत्तब होती हैं। क्या कि उसको 100 कोड़े लगाए, 80 कोड़े लगाए जाएंगे। कितने, 80 कोड़े लगाए जाएंगे। उसके बाद उसकी गवाही को कबूल नहीं की जाएगी। और तीसरी चीज वो क्या होगा, फासिक में से होगा। और फासिक किसे कहते हैं, मन उरिफा बिइर्तिकाब सगाइर और मन उरिफा बिइर्तिकाब कबाइर और इसरार अला सगाइर, कि जिसका मामला ये हो कि वो कबीरा गुनाह भी कभी कभी करता हो और सगीरा पर वो मुदावमत बरतता हो। तो क्या है, इस तरीके से अगर कोई आदमी किसी औरत के ऊपर तोहमत लगाता है तो उसके लिए ये सजाएं कि 80 कोड़े, और इसी तरीके से उसकी गवाही नहीं कबूल की जाएगी और वो फासिक में से होगा। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका, मगर वो लोग जो इसके बाद यानी इल्जाम लगाने के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें। तो यहाँ पर जो इल्ला है, इस्तिस्ना है, वो कहाँ पर लौटता है, इसमें उलमा का, मुफस्सिरीन इकराम का इख्तिलाफ है। तो आप लोग समझ लीजिए कि इल्ला जो इस्तिस्ना है ये समानीन जल्दा पर नहीं लौटता है। ये समानीन जल्दा पर, इल्ला समानीन जल्दा, मुस्तस्ना जो है वो समानीन जल्दा को शामिल नहीं है। ये समानीन जल्दा को शामिल नहीं है, यानी हर हाल में अगर इसने किसी के ऊपर तोहमत लगा दे, घर से तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, जो भी करे, तो उसको 80 कोड़े लगने ही लगने हैं। यानी कि इस्तिस्ना जो है इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जो तौबा कर लेते हैं, ये इस्तिस्ना समानीन जल्दा की तरफ नहीं लौटता। राजिह कौल में इसमें सबका इत्तेफाक है। और दूसरी चीज कि उलाइका हुमुल फासिकून, इसकी तरफ इस्तिस्ना लौटता है। इसकी तरफ क्या है, इस पर भी तकरीबन शुबह इत्तिफाक है उलमा का, मुफस्सिरीन इकराम का, कि वो उलाइका हुमुल फासिकून, यानी अगर कोई बंदा तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो उससे फिस्क का लेवल उठ जाएगा। उससे क्या होगा, फिस्क का लेवल उठ जाएगा, वो फासिक नहीं रह जाएगा। अब मसला बचा कि शहादत की, उसकी शहादत अगले कभी कबूल की जाएगी, आगे की नहीं। तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। इसमें क्या है, मुफस्सिरीन इकराम का इख्तिलाफ है, और कहते हैं कि कबूल की जाएगी, बाद लोग कहते हैं कि नहीं कबूल की जाएगी। लेकिन राजिह मसलक यही है कि जो इमाम शौकानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस्तिस्ना जो है ये वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून, दोनों की तरफ लौटता है, दोनों की तरफ लौटता है। यानी कि
اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو بعد میں اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی اور وہ بندہ کیا ہوگا؟ فاسق بھی نہیں رہ جائے گا. لیکن استثناء سمانین جلدہ کی طرف نہیں لوٹتا ہے. کتنا بھی توبہ استغفار کر لے اس کو کوڑے لگنے ہی لگنے ہیں، لور لگ کر ہی رہیں گے. کہتے الا الذین تابوا. تابع توبہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ الرجوع. تابع کے لوگوں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الرجوع، یعنی ان العبد یرجع عن الاتهام الذي جعلها، کہ بندہ اپنے اس اتہام سے یا اس تہمت سے جو اس نے لگایا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے. وَيَنْدِمُ عَلَى فِعْلِهِ، اور وہ اپنے کام پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ وَيَسْتَغْفِرُهُ، اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہے. پھر اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہاں پر توبہ کے معنی کیا ہے؟ رجوع من هذا الفعل والندم على هذا وكذلك يعتقد ويعزم ان لا يعود لمثل هذه الافعال. کہتے ہیں تاب من بعد ذلك، اس کے بعد اس نے توبہ کر لیا. واصلحوا، اور اپنے اعمال کو اور اپنے اندر درستگی پیدا کر لی اور اپنے فعل اس کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں رہا اور وہ متقی پرہیزگار ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے بندو اگر تم سے گناہیں سرزد ہو گئی ہیں، تم سے گناہیں صادر ہو گئی ہیں، اس کے باوجود بھی تم اللہ رب العالمین کے دربار میں واپسی کرتے ہو، تب بھی اللہ رب العالمین کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے دعاؤں کو قبول فرمائے گا. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.